Good morning, everyone. So, we have already started with the chapter 4 of history, and we are on the part 6. Basically, we will be doing Abbasid Revolution in today's class. So, we have already done about Prophet Muhammad, the first four caliphs, the Umayyad Caliphate, and now this time, today we will do about the Abbasid Caliphate. अब जो Abbasid Caliphate है, obviously we know that it came after the Umayyad Caliphate. जो Umayyad Caliphate है, उन्होंने बहुत सारे political changes किए थे, because of which they were able to rule for such a long period of time. और उनमें से one of the important thing was that they introduced the caliphate which would now continue on the basis of heredity. यानी जो caliph है उसका जो बेटा है he will only become the next caliph. But then obviously there were few changes because of which there was a kind of uprising by one more group who were called the Abbasids, and because of which we come across the new set of rulers who are called the Abbasids. So you can see in this map that Abbasid, or you can say the Abbasid rule expanded to a much more, you can say, parts of the world, and slowly and gradually every section, each after each caliph, they were actually expanding at this time. Now this map is important because I also wanted you to understand the location of this area in the world map. You can see towards the bottom of this map we have the map of the world, and then with this rectangular शेप यू कैन नोटिस कि एग्जैक्टली जो है ये कहाँ पे थी इनकी लोकेशन और कितने एरिया तक जो है these people were ruling with the important center like Damascus, Baghdad, etc. When we'll do the map, we'll do them more precisely. So just have a brief idea whenever we are studying about this area, that when I say that they were expanding or they were ruling towards this particular area, you should have the image of the map according to the location of these areas also in the world. Now we move on to the details of these people, or you can say the revolution that occurred after the Umayyads. Now actually for the success that the Umayyads enjoyed, they had to really pay a lot. ठीक है, हाउ कम? जब हम बोलेंगे सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी थी उनकी, उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस लेके आए थे, तो जब वो चेंजेस लाए थे ना, उनको बहुत टाइम क्या कंसिडर किया जाता था, दे वर नॉट कंसिडर्ड करेक्ट वेज बाय मेनी ऑफ द पीपल, सो दे हैड टू पे अ हेवी प्राइस जब उन्होंने पूरा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया से या एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इतने बड़े एरिया के ऊपर कंट्रोल करेगा. So what did the next group do? We will notice that a well organized movement which was called Dawa brought down the Umayyads and replaced them with other family of the Meccan origin who were the Abbasids in year 750. Now by this what do I mean? उन लोगों ने पूरा का पूरा क्या ऑर्गेनाइज किया था, एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था, और ये जो मूवमेंट था इसको बोलते हैं दावा, जिसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है, टू इनवाइट और अर्ज पीपल टू फॉलो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ. So what were these people saying? These were saying कि उमायद जो है कहीं ना कहीं वो डिविएट हो गए थे अपने जो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ थी, इसलिए अपने को इनके अगेंस्ट क्या करना चाहिए, एक रेवोल्यूशन करना चाहिए, और इस रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने के बाद then obviously we will be able to establish some kind of more Islamic way of leading life and ruling. और इसीलिए उन लोगों ने बोला कि ये जो हम रेवोल्यूशन कर रहे हैं ये हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को मोर डोमिनेंट बना दें इस एरिया में. और ये लोग कौन थे? ये थे एब्बासिड्स. अब एब्बासिड्स को देखो, साइकोलॉजिकली भी ये कोशिश कर रहे हैं लोगों के दिमाग में डालने की. ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो उमायद है ना, ये लोग अच्छे लोग नहीं थे. ये लोग कौन थे? इविल थे. दे वर द इविल पीपल, दे वर नॉट गुड पीपल. Now restoration of the original Islam of the Prophet
was promised by the Abbasids. तो जो Abbasid है ना वो बोल रहे थे अगर उमायद हट गए और उनकी जगह हम आ गए पावर में अब, तो हम जो ओरिजिनल इस्लामिक आइडियाज है उनको तो लाएंगे ही, और जो ओरिजिनल इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद ने जिस चीज के बारे में मैसेज दिया था और लोगों को बोला था फॉलो करने के लिए, उसी बेसिस पे हम पूरे सिस्टम को वापस से क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। और इसलिए उन लोगों ने बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस किए इस मूवमेंट के लिए, क्योंकि वो प्रूफ करना चाहते थे कि हम जो बोल रहे हैं वो हम करेंगे और हम चेंज लाएंगे एक बहुत बड़े वे में, जो कि होना चाहिए ओरिजिनल इस्लामिक वे ऑफ रूलिंग। ठीक है, तो अगेन एज आई सी इन हिस्ट्री, इट इज वेरी important for the ruler to convince people that their rule is better or more justified as compared to the earlier one, क्योंकि उमायद भी थे तो कैलिफेट वाले तरीके से ही चल रहे थे। तो अगर आप बोलो कि अब इनकी जगह हम बनेंगे कैलिफ या हम बनेंगे नेक्स्ट रूलर, तो आपको लोगों को उस चीज को जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे क्या है, रिलीजन एसोसिएटेड है। सिर्फ लड़ाई करके आप एम्पायर नहीं कॉन्कर कर रहे हो, आप एट द बेस जो है आप रिलीजन को फोकस रख रहे हो। तो ये लोग मेन इन्होंने रेवोल्यूशन तो की, खुद पावर में तो आना ही चाहते थे, मैकन ओरिजिन के ही थे, पर ये कैसे बोलते कि उमायद खराब है, तो उमायद की जो बैड पॉइंट्स हैं या अगर नहीं भी है उनको ये लोग क्या कर रहे थे, लोगों तक कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। एबसिड की जो अपराइजिंग है वो एक्चुअली स्टार्ट कहाँ पे हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी इन ए रीजन ऑफ खुरासन जो कि ईस्टर्न ईरान में है। तो अगर उस टाइम के हिसाब से बात करें तो डेमस्कस से अगर कोई जर्नी अपनी स्टार्ट करे हॉर्स के ऊपर तो 20 डेज लगते थे वहां पहुंचने में, कहाँ, खुरासान पहुंचने में, यानी डेमस्कस से इतनी दूर था। और यहाँ पे जो लोग थे यानी कि खुरासान के जो लोग थे वो थे मिक्स्ड अरब और ईरानियन पॉपुलेशन के। अब इन लोगों को क्या किया, मोबिलाइज किया, मोबिलाइज यानी इनको अपने साथ मिलाया। कैसे मिलाया अपने साथ, कि देखो ये वाले जो लोग हैं ना, मतलब ये जो उमायद है ये तो है ना ज्यादातर सिर्फ किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, सिर्फ सीरियन वाले पीपल या अपने टाइप के ऐसे लोगों को देते हैं। तो अगर हम लोग आ गए ना तो हम हर सेक्शन को इम्पोर्टेंस देंगे और आपको जो राइट नहीं मिल रही वो आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको कुछ इम्पोर्टेंट पोजीशन देंगे। और देखो उमायद के रूलर जो है वो अच्छे नहीं है, वो ऐसे करते हैं, दे आर दीज काइंड ऑफ पीपल, दे डू दीज थिंग्स एंड दिस एंड दैट, ऐसे करके उनको कहीं ना कहीं मोबिलाइज मोटिवेट किया कि आप लोग क्या करो, हमारे सपोर्ट में आ जाओ एंड वी ऑल विल ओवरथ्रो द उमायद्स एंड देन वी विल फॉर्म द न्यू काइंड ऑफ रूल व्हिच विल बी बेटर एज कंपेयर्ड टू द अर्लियर वन। अब जो अरब सोल्जर्स थे वो मोस्टली कहाँ के थे, इराक के थे, और इसीलिए वो सीरियंस का जो डोमिनेंस है उसको उनको अच्छा नहीं लगता था, वो उसको रोकने की कोशिश करते थे। दे डिड नॉट लाइक द डोमिनेंस ऑफ द सीरियंस। ये तो हो गई सोल्जर्स की बात। जो सिविलियंस थे ना अरब के, स्पेशली खुरासन वाले, वो भी उमायद रेजिम को बहुत ज्यादा डिसलाइक करते थे। क्यों? क्योंकि उमायद्स ने उनको प्रॉमिस की थी कि हम आपको टैक्सेस में कंसेशन देंगे और कुछ प्रिविलेजेस भी देंगे इफ यू सपोर्ट अस। तो इस यू कैन से इन दिस काइंड दिस thing or this privilege or this promise that the Umayyads were giving to the Arabs of Khurasan, they actually favored and they supported the Umayyads. बट जब ये प्रोमिसेस कभी फुलफिल ही नहीं हुए, सो दीज पीपल वर समवेयर डिसअपॉइंटेड एंड डिसलाइक द उमायद्स। तो ऑब्वियसली अब जब इनके पास नया स्कोप आएगा एब्बासिड के फॉर्म पे, जो बोलेंगे कि देखो उमायद्स ने तो अपने कोई प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं किए, चाहे वो टैक्स कंसेशन के हो, चाहे जो आपको प्रिविलेजेस देने वाली बात हो, वो सब तो वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो ना उन्होंने फुलफिल किया है। तो इसलिए हम अगर पावर में आएंगे तो हम कुछ अच्छे चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। अब जो ईरानियन मुस्लिम्स थे उनको वो जो है उनको कहीं ना कहीं अरब्स जो है उनसे हेट करते थे। क्यों? बिकॉज मतलब कहीं ना कहीं जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट थी उसके कारण। तो वो भी ईगर थे कि अगर हमें मौका मिले तो हम क्या करें, उमायद्स के खिलाफ जो कैंपेन्स है उसमें क्या करेंगे, साथ देंगे। किसका साथ देंगे? एब्बासिड्स का।
क्यों? बिकॉज देयर वाज सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और हेट्रेड वाज देयर बिटवीन द Iranian Muslims and the Arabs. So these people were again having certain kind of dislike for each other, advantage of which was taken by the Abbasids, and they were these people also supported Abbasids. So जब Abbasids को इतने साइड से पॉजिटिव यू कैन से रिस्पॉन्स मिल रहा है फॉर अटैकिंग द उमायद, और उसके साथ साथ वो और प्रोमिसेस भी कर रहे हैं, तो जो सारे सेक्शन ऑफ इस एरिया है ऑफ दिस एम्पायर आर वांटिंग टू एक्चुअली सपोर्ट एबसिड, ताकि अब उमायद हट जाए यहाँ से और कौन आ जाए? एबसिड्स आ जाए। जो एबसिड्स थे ये लोग थे डिसेंडेंट्स ऑफ अब्बास, यानी अब्बास जो थे वो थे प्रॉफिट के अंकल, ठीक है, यानी प्रॉफिट मोहम्मद के अंकल थे। इनके इनके डिसेंडेंट्स यानी इनकी जो फ्यूचर जनरेशंस हैं वो थे एबसिड्स। अब इन लोगों ने क्या किया? लोगों से सपोर्ट लिया, और सपोर्ट किन लोगों से लिया? उन लोगों से जो उमायद के खिलाफ थे। तो यानी कि दोज पीपल हु वर अगेंस्ट द उमायद, these Abbasids asked them to support them। और उसके बाद उन्होंने बोला कि we are actually wanting कि अब जो पावर में आए वो कहीं ना कहीं क्या हो? मसीहा हो। और मसीहा का मतलब यहाँ क्या है कि somebody belonging to the family of Prophet Muhammad, क्योंकि भाई वो जो अब्बास थे वो थे प्रॉफिट मोहम्मद के अंकल, तो उनके जो डिसेंडेंट है वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? प्रॉफिट से रिलेटेड है। तो इसीलिए अब जो हम चाहते हैं कि जो लोग पावर में आए वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मोहम्मद से रिलेटेड हो। अगर ये प्रॉफिट मोहम्मद से रिलेटेड होंगे तो फिर जो हमारा अब जो कैलिफेट आएगा या अब जो रूल आएगा वो एक लेजिटिमेट वाला होगा, वो एक सही होगा। और इन्होंने ये भी बोला कि अगर नया रूल आया जिनका जो कि प्रॉफिट के कहीं ना कहीं रिलेटिव है और एक लेजिटिमेट रूल होगा वो, तो ये लोग ही जो है आपको लिबरेट करेंगे, फ्री करेंगे। किस चीज से? जो ऑप्रेसिव रूल है किसका? उमायद का। यानी उमायद जो अच्छी तरीके से रूल नहीं कर रहे हैं, लोगों को ऑप्रेस कर रहे हैं, लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उन पे अच्छा रूल नहीं कर रहे, उन पे कुछ एट्रॉसिटी कर रहे हैं, उनको मतलब कहीं ना कहीं सप्रेस करके रख रहे हैं, इन लोगों मतलब उमायद के ऐसे रूल से फ्री करेंगे कौन? एबसिड्स ही करेंगे। तो इनकी जो आर्मी थी, इनके जो हेड थे, जो लीडर थे, वो थे एक इरानियन स्लेव एंड हिज नेम वाज अबू मुस्लिम। ही डिफीटेड द लास्ट उमायद कैलिफ। मारवा जो थे उनको डिफीट कर दिया गया था इन द बैटल ऑफ रिवर ज़ैप। तो एक बैटल हुआ था जिसका नाम था बैटल एट द रिवर ज़ैप, और ये जो बैटल है इसमें ये जो इरानियन स्लेव है अबू मुस्लिम, ही डिफीटेड द लास्ट उमायद कैलिफ हु वाज मारवा। Now under the Abbasid rule, Arab influence decline। धीरे धीरे जो अरब इन्फ्लुएंस है वो क्या करने लग गए? डिक्लाइन होने लग गए, और इम्पोर्टेंस ऑफ इरानियन कल्चर इंक्रीज हो गई। अंडरस्टैंड, हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि अरब और ईरान में कहीं ना कहीं पावर से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, और ये अब जब एबसिड रूल में आ गए हैं तो उन्होंने क्या किया? अरब को इम्पोर्टेंस देना कम कर दिया, उनकी इन्फ्लुएंस को कम कर दिया, और इम्पोर्टेंस किसको देने लग गए? ईरानियन कल्चर को। और एबसिड ने अब अपना कैपिटल कहाँ कर लिया? बगदाद में कर लिया, यानी उमायद की कैपिटल से हटा के कहाँ कर लिया? बगदाद कर लिया। और बगदाद जो है सेटअप था ऑन द एंशिएंट इरानियन मेट्रोपोलिस, यानी कि एंशिएंट इरानियन एक मेट्रोपॉलिटन बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी जिसको हम बोलते हैं सेक्सीफोन। नाउ ये जो है ये एक ऐसी एरिया थी जो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इरानियन वाज इम्पोर्टेंट। तो इस बगदाद एरिया को उन्होंने अब क्या बना लिया? अपना कैपिटल बना लिया। So यानी they are somewhat giving more importance to the Iranian group. Now along with that we will see कि आगे क्या हुआ। इनकी जो आर्मी और ब्यूरोक्रेसी है इनको अब इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया। ऑन व्हाट बेसिस? नॉन ट्राइबल बेसिस, क्योंकि जो उमायद थे वो सिर्फ अपने ट्राइब को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, तो इन्होंने बोला हम नॉन ट्राइबल बेसिस पे करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन किसकी हो? इराक के लोगों की हो और खुरासान के लोगों की हो।
और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, अपना रिलीजियस स्टेटस जो है उसको स्ट्रेंथन अप किया, यानी खुद का जो कहीं ना कहीं कनेक्शन था विद इस्लाम उसको स्ट्रेंथन किया। कैलिफेट के जो फंक्शंस हैं उसको स्ट्रेंथन किया। इस्लामिक इंस्टीट्यूशन, इस्लामिक के जो स्कॉलर्स थे उनके जो तरीके थे प्रे करने के, वर्शिप करने के, रिचुअल्स के, उनके जो बिलीव्स थे, उनके स्कॉलर्स थे, उनको स्ट्रेंथन किया, उनको पॉपुलराइज किया, फेमस किया और उसको इम्पोर्टेंस देने की कोशिश की। बट कहीं ना कहीं अब उन्होंने ये नोटिस किया कि एम्पायर इतना बड़ा था कि इनको सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस करनी ही पड़ेगी। यानी कहीं ना कहीं जिस चीज के लिए ये लोग उमायद को बोलते थे कि भाई अकेले इंपॉर्टेंस करते हैं, एक साइड को पूरा सेंट्रलाइज जैसे बना रखा है, वो इनको भी करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? बिकॉज इतने बड़े एम्पायर को ऑब्वियसली अगर वो चाहते हैं कि जो सेंटर है उसकी इंपॉर्टेंस रहे, तो उस तरीके से ही रूल करना पड़ेगा कि सेंटर जो है अलग अलग पावर्स अलॉट करे दूसरे लोगों को, बट सारा पावर जो है वो सेंटर के पास ही रहे। और कुछ और चीजें जो इन्होंने कंटिन्यू की, उमायद्स की थी, वो थी जैसे मैग्निफिसेंट इंपीरियल आर्किटेक्चर जो था, जो बहुत अच्छा था उमायद्स का, वो उन्होंने कंटिन्यू की। जो वो लोग कोर्ट की सेरेमनीज करते थे उमायद्स, बहुत इलेबोरेट फॉर्म में, बहुत हम बोलेंगे कि मतलब एक्सपेंसिव और बहुत अच्छी तरीके से या बहुत सेलिब्रेट करते थे बहुत सारी सेरेमनीज को अपने कोर्ट में, उसको भी उन्होंने कंटिन्यू रखा है। यानी इंपीरियल आर्किटेक्चर, यानी जो एम्पायर होता है उसका एक स्पेसिफिक, जैसे बहुत मैग्निफिसेंट फैबुलस हम बोलेंगे, बहुत लैविश जो आर्किटेक्चर होता है उसको कंटिन्यू रखा, और जो उनकी कोर्ट की सेरेमनीज हैं उसको भी कंटिन्यू रखा। अब एक और चीज जो हमें देखेंगे कि जिस चीज में वो लोग प्राइड लेते थे ना, कि देखो हमने कोशिश की है कि उमायद कहीं ना कहीं क्या हो रहे थे, मोनार्की ही हो रहे थे। उन्होंने क्या किया था, कैलिफेट को क्या कर दिया था, हेरिडेटरी वाली पोजीशन बना दी थी, तो कुछ ना कुछ मोनार्की से रिलेटेड हो गया था। तो ये एबसिड्स बोलते थे देखो ये लोग मोनार्की वाला सिस्टम लाए थे, तो हम लोग इसको हटा के एक अच्छा सिस्टम लाएंगे। और कहीं ना कहीं अब इनको खुद भी क्या करना पड़ा, उसी सिस्टम में रिटर्न करना पड़ा। किस सिस्टम में? मोनार्की जैसे सिस्टम में। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी क्या कर दिया था, अब सेंट्रलाइज काइंड ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर ली थी। So with this we understand, though they brought lot of change, and we will see also कि ये लोग भी बहुत सालों तक रूल करते हैं, and the rule is also you can say the one in which they have seen expansion. बट जो इनिशियली कुछ चीजों को ये उमायद की जिन चीजों को क्रिटिसाइज करते थे, कहीं ना कहीं ये भी मूव बैक हो गए टू दोज वेरी थिंग्स। Why? Because somewhere we will notice that these people were the one who saw कि इतने बड़े एरिया को रूल करने के लिए यही सिस्टम जो है कंटिन्यू करना पड़ेगा, अदरवाइज द रूल कैन नॉट बी डन सो एफिशिएंट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एबसिड एंड देयर रेवोल्यूशन। few things we also need to understand. If you have your book on your page number 85, you can notice one monument that is shown. It is the Great Mosque of, which was actually the second Abbasid capital जो था उनकी जिस एरिया में समारा में, वहीं पे उन्होंने क्या किया था, एक ग्रेट मॉस्क बनाया था 850 में। इसकी जो मीनार थी इट वाज 50 meters high and it was made of brick and it was inspired by the Mesopotamia architecture. और हम देखेंगे फॉर मेनी सेंचुरीज टू कम इट वाज अमंग द लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड। यानी आर्किटेक्चर वाइज भी ये लोग जो है समवेयर दे वर डेवलपिंग एंड दे वर डेवलप। पॉइंट्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं कि उमायद्स ने जो इंट्रोड्यूस किए थे वो बहुत सालों तक चले थे, बिकॉज इट इंक्लूडेड मेनी ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द इस्लाम रिलीजन ओनली। So to wind up the Abbasid revolution or the Abbasid rule, we can just say that these people also had actually ruled over this area over a very long time period, and they took few political changes as compared to the people, or the you can say
the Umayyad rulers. And if you want to see the, as I told you कि capital इन्होंने बना ली थी, this Baghdad area, I suppose you can see it in the map. This is the Baghdad area. If you can see my cursor, okay, I'll just mark it with the color so that this becomes more clear to you. You can notice this is the Baghdad area. The red color thing that I've just marked, I'll mark it again. This is the Baghdad, and इससे पहले था Damascus was the important one. So Damascus से जो shift है वो हो गया था towards Baghdad, and इनका extension जो है we can already see. So उसके बाद इतने एरिया तक ये एक्सपैंडेड थे. फिर इन्होंने मेन रेवोल्यूशन क्या किया था हमने देख ही लिया कि इन्होंने एक प्लान मूवमेंट किया था जिसके थ्रू उमायद को हटा दिया. लोगों को ये प्रॉमिस किया कि हम जो है कहीं ना कहीं वी आर दी ओरिजिनल डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, क्योंकि जो अब्बास थे वो प्रॉफिट मोहम्मद के अंकल थे. एंड उसके बाद उनके जो डिसेंडेंट है वो लोग जब आएंगे तो वो लोग बहुत चेंजेस लाएंगे. ओरिजिनल जो इस्लाम है उसी की तरफ वो लोग मूव करेंगे. एंड जो उमायद जो ठीक से रूल नहीं कर रहे थे उसको हम चेंज करेंगे. अरब और इरानियंस में जो कहीं ना कहीं हेट्रेड थी उसका फायदा उन्होंने एबसिड्स ने लिया और अपने साइड लोगों को कर लिया, इरानियंस को. एंड उसके बाद जो सिविलियन अरब्स कुराशन के थे वो भी कहीं ना कहीं डिसलाइक करते थे उमायद्स को, क्योंकि जो टैक्स कंसेशन और प्रिविलेजेस प्रॉमिस किए थे उमायद्स ने वो नहीं दिए थे. और अरब सोल्जर्स कहीं ना कहीं थोड़ा सीरियंस के डोमिनेंस से भी अपसेट थे. तो ये सारे चीजों का फायदा उठा के एबसिड्स ने क्या किया, बोला कि नाउ वी शुड ब्रिंग अ बिग चेंज इन द होल एम्पायर. एंड फाइनली ये जो चेंज लाए जिसमें ये लोग एबसिड रूलर जो है बन गए द नेक्स्ट यू कैन से द रूलिंग पीपल. और इन्होंने स्ट्रेंथन किया, फंक्शंस चेंज किए, इस्लामिक ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशन पे बहुत फोकस किया, बहुत सारी डेवलपमेंट की. पर कहीं ना कहीं कुछ चीजों में इनको वापस जाना पड़ा जो उमायद फॉलो करते थे, जैसे सेंट्रलाइज नेचर और मोनार्की जैसी चीजें. So their rule was somewhat good only and expanded. Now after this we'll move on to the other details, that is the breakup of the caliphate and the rise of the sultanate. So it is a new topic which we'll start in our next class. So I suppose everything is clear. If there is any doubt, feel free to ask. This is it for the meeting. Now we'll meet in the next class.